अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मरकजी हीरो के तौर पर उभरे। कांग्रेस से लटके केशराव ने नई तालीम पॉलिसी और लोकसभा हल्काजात की हदबंदी पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम जिले नलगुंडा से शुरू की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने किया ऐलान। कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने के मामले पर राज्यसभा में हंगामा। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुबाहिस। आरएसएस मुल्क के तालीमी निज़ाम और दीगर मामलात में कर रही है मुदाखलत, मुल्क के लिए है खतरा। कांग्रेस से साबिक़ सदर राहुल गांधी का इल्ज़ाम। वक्फ मामलात में मुदाखलत करने के लिए मरकजी हुकूमत ने वक्फ बिल लाया। आरएसएस और मोदी मुसलमानों को मजहबी मामलात से दूर रखने की कर रहे हैं साजिश। सदर मजलिस असद ओवैसी का बयान। हुक्मरान जमात बीजेपी एक सोची समझी हिकमत अमली के जरिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में डाल रही है खलल। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों का रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइली फौज ने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की हंगामी इमारत पर जंगी तैयारों से की बमबारी। ताज़ा हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 50,000 से भी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस लीडर के केशराव ने नई तालीम पॉलिसी और लोकसभा हल्काजात की हदबंदी पर अपना मौक़िफ़ बयान किया और उन्होंने दावा भी किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस पूरे मामले में मरकजी हीरो के तौर पर उभरे हैं और जनूबी हिंद की रियासतों की मीटिंग में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जनूबी हिंद की रियासतों से मरकज़ की नाइंसाफ़ी के हवाले से भी केशराव ने रद्द-ए-अमल दिया। Vis-a-vis your delimitation was indeed a success. And in my view, Mr. Revanth Reddy has emerged a hero on the national scene with this, because he spoke with all firmness, with conviction, and also taking the entire national interest in consideration and went about. So today, I think the hero of the total scenario would be Revanth Reddy to do that. But I am not trying to reduce the importance of all other great leaders who had come there. All the chief ministers had come. It's the first time, and I am in politics for the last 60 years. We have tried many a time to bring all people onto one platform on one issue. This delimitation issue is one issue on which such a great success has been achieved. Now in this, let me tell you, this is not for mere seats. Delimitation is truly an exercise which will be carried on by the Delimitation Commission, which will be appointed. That will decide as to what is the method that they will take. They might, to keep the seats within the viable circle, they might go for pro rata, which they are saying. That is, they'll give to each state something. And Amit Shah says not a single state would lose a seat, which shows if all the states have their own thing, the increase would be something like 431 or something if you calculate. That all depends on the calculation of the states that they go. But at the same time, the South has its apprehension that if you go by population, they are suffering because in the 2006, they have been following the population control rules very strictly. Their GDP had gone up. Their contribution to national exchequer is more. They give something like 30% to GST, but they get only 20% back. Like that, 1 rupee, if they give, only 17 paisa they get, but whereas Bihar, 1 rupee, they get 6 rupees. So these kind of anomalies are there, which I think should not be used to criticize the other party, but we must find out a method. So to find out this method, yesterday they had checked out a program, and Mr. Revanth Reddy has offered to hold a meeting in Hyderabad again
a big meeting of all the parties, and they would like to address the issues that have been raised or will be raised tomorrow. कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर हनुमंत राव ने भी हलकों की असरनो हदबंदी के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने जुनूबी हिंद से नाइंसाफी की बीजेपी की जानिब से जारी कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं हनुमंत राव का ये बयान। और डीलिमिटेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों बोले तो डीलिमिटेशन से तेलंगाना की 2 सीट कम होंगे पार्लियामेंट का और आंध्र में 4 या 5 सीट कम होंगे। तो इसी वजह से नॉर्थ में ज्यादा फायदा मिलेगा सीटों का और साउथ में सबको अन्याय होगा। सब मिलकर लड़ना चाहिए। और किशन रेड्डी बोल रहा अभी हम डीलिमिटेशन लगाए ही नहीं। अरे भाई लगाए नहीं तो फिर ये पुकारा क्यों? तो इस वजह से वो डीलिमिटेशन का बिल रोकिए। वैसी आरटीआई का भी कानून बनाए थे जब मनमोहन सिंह के पीरियड में यूपीए चेयरपर्सन में। वो आरटीआई से सबको फायदा, एक तलवार है वो आरटीआई। हर गरीब आदमी पूछ सकता जो हमारा गांव में रोड कौन बनाए, रोड का जिम्मेदार कौन है और यहाँ जो काम हो रहा वो बराबर हो रहा नहीं हो रहा, हर एक के बारे में कोई लीडर का बात भी कर सकते। भाई उनको कितने फैमिली है और कितने बच्चे हैं पूछने का हक है। और ये काम आरटीआई में हुआ। आरटीआई बड़ा सोच समझ के बिल बनाए और नरेंद्र मोदी वो भी बिल में चेंज करना चाह रहा है। उसके ऊपर जयराम रमेश एआईसीसी जनरल ने मुझे व्हाट्सएप में भिजाया। ये आरटीआई क्यों जरूरत है? फिर वो नया आरटीआई का बिल क्यों रख रहे? इसको सभी लोग अपोज करना चाहिए और डीलिमिटेशन को अपोज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो 2 तारीख को थे सभी लोग जितने भी डीसी एसोसिएशन से सभी दिल्ली आना चाहिए ताकि वहां पर जंतर मंतर पे धरना करेंगे। तो उसके ऊपर सीएम भी बराबर इस पे कोशिश करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब करेंगे चीफ मिनिस्टर और राहुल गांधी अगर आएंगा तो इसका एक बहुत बड़ा। बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातें गैर जरूरी तौर पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हलकों की असरनो हदबंदी के मामले पर बीजेपी सोच समझकर इक़दामात कर रही है। केंद्र सरकार डीलिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। 29 में डीलिमिटेशन होने वाला है। इस देश के अंदर एवरी 20 इयर्स डीलिमिटेशन विल टेक स्पेस। अगर केंद्र सरकार सीट्स बढ़ाता नहीं बढ़ाता और नहीं बोलने के बाद साउथ का नुकसान हो रहा बोल के ऐसा कैसा बोल सकते? इससे पहले जो डीलिमिटेशन हुआ था 2009 में हमारा आंध्र प्रदेश जब कमांड स्टेट था 42 सीट्स था, 42 सीट्स वैसी रहा। अभी डीलिमिटेशन हुआ तो तेलंगाना का जो 17 सीट है 17 सीट रहेगा। अगर कुछ देश के अंदर बढ़ाने का जो निर्णय लेता है जब मालूम होता है क्या हिसाब से बढ़ता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, जब मालूम होता। मगर आज जो रीजनल पार्टीज एंड कांग्रेस पार्टी जो हल्ला कर रहा है केवल उन सीट्स के अंदर जो प्रजा का वादा किया था वो वादा फुलफिल करने का ताकत नहीं है। डाइवर्ट पॉलिटिक्स डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर कुछ दबाव बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश के प्रजा हंस रहा है इन लोगों का जो स्टेटमेंट उनका मीटिंग। गजवेल हल्के के कांग्रेस कायदीन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और याददाश्त पेश करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि हल्के से बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि वो असम्बली इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हल्के के अवामी मसाइल को भी हल नहीं किया जा रहा है। इससे खबर भी कांग्रेस लीडरों ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड्स की तकसीम जिले नलगुंडा से शुरू की जाएगी। याद रहे कि हुकूमत नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा रखती है और इसके तहत बारीक चावल फराहम करने का भी वादा किया गया है। उन्होंने जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में IOC ऑफिस में अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत और दीगर मसाइल पर भी मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की।
बीआरएस पार्टी ने हाथे असम्बली में आज किसानों की ताईद में मुजाहरा किया और हाथों में प्ले कार्ड थामे किसानों के मुकम्मल कर्जे माफ करने का मुतालबा किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की क़यादत में ये एहतजाजी मुजाहरा हुआ। साबिक़ा वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी और दीगर बीआरएस कायदीन भी इस मुजाहरे के मौके पर मौजूद थे। केसीआर दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे। रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने असम्बली में केसीआर की सताइश करते हुए यह बयान दिया और कहा कि केसीआर के दौर में रमज़ान के मौके पर गरीब मुसलमानों को रमज़ान तोहफ़ा दिया जाता था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने यह रिवायत ख़त्म कर दी है। अकबर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को सिर्फ एक मामूली अफ्तार की दावत देकर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सर ये लोग वो रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब थी, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। सर रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे। अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ। सर हम बोलेंगे सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट सर कि आप ये इतने फंड से दे दीजिए। सर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने शहर हैदराबाद में कचरे के अंबार के हवाले से भी बयान दिया और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कचरे के डब्बों को उठा दिया गया, जिससे शहरियों को तकालीफ का सामना हो रहा है और शहर में भी सफाई ढंग से नहीं की जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट बीन गेटिंग मेंटेन्ड इन जीएचएमसी एरिया सर, उनको पैसे नहीं दिए बोल रहे हैं सर। और जो है सो इतना परेशान है सर लोग वहां पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मेंटेन करने वाले, बच्चों की फीस नहीं दे सक रहे, पैसे नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स का इशू विच आई हैव बीन मेंशनिंग सर, काइंडली उसको एड्रेस करिए सर। दूसरा सबसे बड़ा मसला है सर, दिस इज अबाउट सर दिस गार्बेज डंपिंग सर। वो बोले थे सर वो बिन फ्री सिटी बनाएंगे, बोले सर पूरे बिना उठा दिए, रास्ते में कचरे डाल रहे हैं, कचरा उठ ही नहीं रहा है सर। और ये गंगानगर के नाले का, याकूतपुरे का हम बोले थे, आज तक नहीं हुआ सर। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, वी हैड सेवरल मीटिंग्स सर अर्लियर आल्सो, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन इंपॉर्टेंट इशू सर। द जीएचएमसी हैज टू गिव एन एनओसी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 बेडेड हॉस्पिटल सर इन याकूतपुरा, अब तक वो नहीं दिए सर। द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हैज टू गिव एन एनओसी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 बेडेड हॉस्पिटल एट बल्लागुड़ा, ये भी अब तक नहीं दिए। सो आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू इट सर। सर द रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट थोड़े बने, थोड़े रुक गए सर। शादी खाने मंजूर हुए सर, चंद्रायन गुट्टे में हमारे पास में सर शादी खाने दिए थे, पूरे सिटी में दिए शादी खाने गरीबों के शादी के लिए जीएचएमसी की तरफ से सर, वो भी नहीं बन रहे हैं सर। कल्याण मंडपम दिए थे, वो भी नहीं हो रहे हैं। मार्केट्स दिए थे, वो भी नहीं हुए सर। सब पेडेस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट चार मीनार का मैंने जिक्र किया है, पता नहीं कब होगा। मंडी मीर आलम कब कंप्लीट होगी, चौके मुर्गी कब होगा नहीं मालूम, पत्थरगट्टी की रोड कब होगी नहीं मालूम सर। नए पुल पे ब्रिजेस आना है हॉकर्स का, कब होगा, वी आर वेटिंग सर। सर ये पुराने शहर को तरक्की देने के लिए मुसलसिल हम बोलते जा रहे हैं और उसके बाद में हम देखते हैं। कांग्रेस अक़लियती लीडर शेख राशिद ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। मेयारी तालीम, मुफ्त बिजली, मुफ्त में ख़वातीन के लिए बस सफ़र, उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर की जा रही है। शेख राशिद ने भी कहा कि अपोजिशन की तनकीदें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मैं अरशद शेख, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। हालिया में कुछ दिनों से बीजेपी बीआरएस सरकार, इन लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं। ट्रेंड ये चला रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी। हाँ, अभी रमज़ान का महीना है, इफ्तार के लिए इतना फंड क्यों, इफ्तार को बाइकआउट करो, पता नहीं क्या क्या कर रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी, वो तो ओवरसीज जो स्कॉलरशिप्स है उसका अपग्रेडेशन का काम करी कांग्रेस गवर्नमेंट। इंदिरम्मा महिला शक्ति के अंदर हमारी बहनों के लिए सीविंग मशीन का काम करी कांग्रेस गवर्नमेंट। टेमरिस जो क्वालिटी एजुकेशन है सिर्फ ढांचों की शक्ल में रखे, इसको एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है। गैस की सप्लाई है, 500 रुपये सब्सिडी, 200 यूनिट फ्री करंट दे रही कांग्रेस, साथ में फ्री बस फैसिलिटी दे रही। तारीखी काम हैदराबाद के अंदर मेट्रो रेल ओल्ड सिटी के अंदर शुरू करी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का जो है ना इनॉग्रेशन करी। ये सब कांग्रेस ही तो करी है। ये पिछले 10 साल से झूठे वादे कर रही थी बीआरएस, इसको अमल में लाने का काम करी कांग्रेस। अब रहा सवाल रमज़ान का महीना, इफ्तार पार्टी, फंड क्यों 10 साल से ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं, इनको क्या 10 साल में याद नहीं आया क्यों था फंड, क्या था? अरे बाइकआउट की बात कैसे आ रही है यहाँ पे?
10 साल में क्या नहीं किया हो। इंडो तुर्किया फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से मादापुर में दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकर्दा और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। MLC आमिर अली खान, तुर्क कौंसल जनरल उरहान यलमान ओकान, एसोसिएशन के चेयरमैन फैज़ खान और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी इस अफ्तार पार्टी में शिरकत की। The greatest adversaries Ali respected the most for what George Foreman stood for. So that is life, and that is what our great nation is all about again. Well, around the corner we are about to, complete our month of fasting, this holy month of Ramadan. But we're going to celebrate two festivals. Sunday, we have Ugadi, our Telugu New Year. And on Monday, God willing, we have Ramadan. So this is again the beauty of my great country as well. When Pandit Nehru first visited Hyderabad, when he went around, and my family was fortunate enough to be with him at that point in time, when he visited the Nizam of Hyderabad, he looked around and he admired the basant and other things that used to happen in Hyderabad back then, and he said, looking at this, I would like to welcome you all to our Iftar program this evening. It's always a great pleasure for us to come together with our friends in this kind of beautiful occasions. Ramadan to bless all of us. I also would like to thank Mr. Faiz Khan, Indo-Turkey Friendship Association. But not least, I would like to express my gratitude to our sponsors as well. You can see their logos on the screen, and later on we will invite them for felicitation as well. Sharing. Therefore, we are here together to share the same supper. It's not just fasting itself. It is not just keeping away from drinking and... Therefore, we all have fasting in all religions in different forms. हनमकुंडा के MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से हस्ब रिवायत इस साल भी शानदार दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसका सिलसिला गुज़िश्ता 18 सालों से जारी है। इस मौके पर लगभग 5000 रोज़ेदारों ने शिरकत की। MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा की आवाम के लिए रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अहम ऐलान करते हुए कहा कि 3 एकड़ ज़मीन ख़बरस्तान के लिए मुख्तस की गई है। इस मौके पर सैयद ग़ुलाम अफजल ब्यावानी, अलमारूफ खुसरो पाशा, चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వరంగల్ జిల్లాలోనే మత సామరస్యానికి మారు పేరుగా నిలిచినటువంటి ఈ రంజాన్ పవిత్ర మాసంలో మీరందరూ ఎంతో ఉపవాసంతో ఉండి నిష్ఠగా అల్లాహ్ని అందరం మంచిగా ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అని కోరుకోవడం నిజంగా సంతోషకరమైన విషయం। మరి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఈద్ అడ్వాన్స్ ఈద్ ముబారక్ రంజాన్ కి బాత్ బోల్ రहा हूं। అందరం కలిసి కలెక్టర్ గారి దగ్గర కూర్చొని ఇయాల కబరస్థాన్ గురించి 3 ఎకరాల జీవో కాపీ बातों के लिए कामों की है, हम काम करवा के दिखाएंगे। हम बातों पे नहीं चलते, कामों पे चलते, काम करा के दिखाते। सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए इंग्लिश के लिए 950 करोड़ रुपए मुख्तस किए ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे, फ्री में खाए, फ्री में रहे, फ्री में काम करें। दूसरी बात, अभी इस साल का जो बजट आया है उसके अंदर बेरोजगार नौजवानों को लोन दिए जाएंगे, गाड़ियां दिए जाएंगी, कारें दिए जाएंगे, ऑटो दिया जाएगा। आप तमाम लोगों से ख्वाहिश है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भर दे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तारीख शुरू हो चुकी है। मैं बेरोजगार नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा और अपने दोस्त अहबाब, अपने महिलाओं की बात का ऐलान करें। अमीरपेट इलाके में एक होटल में आज सुबह गैस सिलेंडर धमाके की इत्तला है। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शहर हैदराबाद की 3 होटलों के खिलाफ फूड सेफ्टी महकमे ने कार्रवाइयाँ की हैं। नाक़िस सफाई के इंतजाम, गैर मेयारी पकवान की अशिया और किचन में झिंगरों के पाए जाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। हैदराबाद के मंदी टाउन और मंदी किंग और साथ में मंदी 35 बंजारा हिल्स के खिलाफ भी मुताल्लिका महकमे ने कार्रवाई की।
और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। RSS मुल्क के तालीमी निज़ाम और दीगर मामलात में खुली मुदाखलत कर रही है, जो मुल्क के लिए संगीन खतरा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले में RSS की बढ़ती मुदाखलत तशवीशनाक है। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर RSS नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर RSS के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी RSS का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और RSS को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने कहा कि वफ़ मामलात में हुकूमत मुदाखलत करने के लिए वक्फ बिल लाई है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एहतजाज जारी रखने का फैसला दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को उनके मजहब से दूर रखने के लिए मोदी हुकूमत और RSS मुसलसल इक़दामात कर रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है, वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है, तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो यहां पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एंक्रोचर्स हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ बाय यूजर को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संभल की मस्जिद में, तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस। माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और RSS की कोशिश यही है।
कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने के मामले पर राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हुक्मरान जमात के अरकान ने नारेबाजी की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आईनी ओहदे पर फायज लीडर ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए आइन में तब्दील की बात की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस को वाज़ेह तौर पर बयान देना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस के सदर खड़गे ने कहा कि यह बहुत चौंका देने वाला मामला है। हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी है कि वह ऐवान को चलाए, लेकिन ऐवान को चलाने के बजाय पार्लियामेंट में जानबूझकर खलल डालने की कोशिशें की जा रही हैं। I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1A of today's revised list of business. Honorable Chairman sir, एक मिनट में बोलते, एक मिनट सर, why I have to, एक मिनट sir, it is not our intention to disrupt this 0 hour. Why I am standing here is because of an extremely important and sensitive matter which has come to our notice. The members of parliament from the NDA have met me and raised this very important issue. What is the issue? Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. कांग्रेस ने कहा है कि हुक्मरान जमात बीजेपी सोची समझी हिकमत अमली के जरिए पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर कर रही है और साजिश के तहत रियासतों के मसाइल को उठाकर ऐवान चलने नहीं दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जहन बना लिया कि वो नहीं चाहते कि ऐवान चले। वो काफ़ी अरसे से हंगामा करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। पार्टी के रुकन राज्यसभा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि मोदी हुकूमत ने साजिश के साथ लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ मुलतवी की हैं ताकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर से मिलने वाले नोटों के बंडल के बारे में कोई सवालात सामने न आए। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिवकुमार का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी आइन को तब्दील करने की बात नहीं कही है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पट्टी के जुनूब में वाक़े खान यूनुस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की हंगामी इमारत पर जंगी तैयारों के ज़रिए बदतरीन बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चों समेत 21 अफराद की शहादत की इत्तलात हैं, जबकि कई दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए। काबिज़ फ़ौज ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहूम के छापे के दौरान नासिर हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेटिंग रूम पर बमबारी करते हुए शहीद कर दिया। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने खान यूनुस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सर्जरी के शोबे को निशाना बनाने की मजम्मत की। हमास गाज़ा में इस्माइल बरहूम की काबिज़ दुश्मन के वज़ीराना हमले में शहादत पर सोग का भी ऐलान किया। हमास ने कहा कि हम इस नए जुर्म की मजम्मत करते हैं जिससे मुक़द्दस मकामात, ज़िंदगी और सेहत की सहूलतों पर दहशतगर्द हमले इसराइल की जानिब से खुले आम जारी हैं। ये बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी और मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। वज़ारत सेहत ने बताया कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 1.5 साल हमलों के दौरान अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। हरम शरीफ मक्की में माह रमज़ान मुबारक की बरकतें लूटने वाले अंदरून और बैरून मुमलिकत ज़ायरीन का रिकॉर्ड इज्तिमा देखा जा रहा है। वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफ़ीक़ रबिया के मुताबिक रमज़ान मुबारक की 23वीं शब को हरम शरीफ में 30 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद हुई। याद रहे कि रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रे के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन पहुँच रहे हैं और तरावी में भी काफ़ी हुजूम है। ऐमा हरमैन शरीफैन रक़तंगेज़ दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मरकजी हीरो के तौर पर उभरे। कांग्रेस से के शराव ने नई तालीम पॉलिसी और लोकसभा हल्क़ाजात की हदबंदी पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम ज़िले नलगुंडा से शुरू की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने किया ऐलान। कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने के मामले पर राज्यसभा में हंगामा, हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुबाहिस। आरएसएस मुल्क के तालीमी निज़ाम और दीगर मामलात में कर रही है मुदाखलत, मुल्क के लिए है खतरा, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का इल्ज़ाम। वक्फ मामलात में मुदाखलत करने के लिए मरकजी हुकूमत ने वक्फ बिल लाया,
RSS और मोदी मुसलमानों को मजहबी मामला से दूर रखने की कर रहे हैं साजिश, सदर मजलिस असद ओवैसी का बयान। हुक्मरान जमात बीजेपी एक सोची समझी हिकमत अमली के जरिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में डाल रही है खलल, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों का रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइली फौज ने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की हंगामी इमारत पर जंगी तैयारों से की बमबारी, ताज़ा हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद, शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 50,000 से भी बढ़ गई। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।